I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter from slave to savior. Before starting, yes, I know you are waiting for the lesson goal. Yes, let's start. Children will learn the powerful lesson of kindness and friendship, understanding that compassion towards others, even animals, can lead to unexpected bonds. This story teaches empathy, bravery, and the importance of helping others, showcasing the value of friendship across differences and the rewards of showing compassion even in the face of fear. So यहाँ अगेन आपको दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए दयालुता दिखाना एंड फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ों की वैल्यू आपको पता चलने वाली है, इम्पोर्टेंस आपको पता चलने वाली है. अबाउट द स्टोरी, इन दिस स्टोरी a slave named Androcles ran away and helped the wounded lion by removing a thorn from its paw. Later, both were captured and placed in an arena. The lion recognized Androcles, spared him, and they became friends. Their kindness led to freedom for Androcles, emphasizing the importance of helping others and strength of friendship. तो यहाँ पे आपको इस कहानी के माध्यम से आपको एक जो फ्रेंडशिप है उसकी जो शक्ति है और जो दूसरों की मदद करने की इम्पोर्टेंस आपको पता चलने वाली है. बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, लेट्स हैव अ लुक ऑन रेडी अप. व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड? Can you give examples of qualities a good friend should have? So let's start the story now. A long time ago, there was a slave named Androcles. His master treated him badly and used to beat him up. One day, Androcles decided to run away. He left the city and ran away to the countryside, where he hoped to hide from his cruel master. He ran away from the city and entered a thick forest. There he could find no food and became very hungry. So एक स्लेव की कहानी है जिसका नाम एंड्रोक्लस था और उसको उसका मालिक जो है बहुत बुरी तरह से पीटता था, बुरा व्यवहार करता था. तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से भाग जाता हूँ. तो वो सिटी के जो कंट्री साइड रास्ता था वहाँ पे वो चला गया, उधर की तरफ चला गया और वहाँ पे घने जंगल थे क्योंकि वो छिपना चाहता था, अपने जो निर्दयी जो उसका मालिक था उससे छिपना चाहता था. और वो बहुत ही घने जंगलों में चला गया. वहाँ उसे ना तो कोई खाना मिला और बहुत भूखा भी था वो, राइट. देन ही फेल्ट लाइक ही वॉज गोइंग टू स्टार्व टू डेथ. भूख से जैसे वो मरने जा रहा है ना, मर रहा हो, ऐसा उसे फील होने लगा. He crawled into a cave and lay down on the floor. He was very tired and hungry. He had just fallen asleep when he heard a growl. He looked up and saw a huge lion limping towards the cave. It was roaring. The poor slave was afraid and had no way to escape. He thought the lion would kill him. अब वो इतना भूखा था कि उसे मतलब वो क्रॉल करके केव की तरफ गया, जो गुफा थी वहाँ पर, एंड उसके जो फ्लोर था वहाँ पे लेट गया. अब वो बहुत भूखा भी था और थका हुआ भी था, तो वो उसे नींद आ गई, सो गया. उसने एक गर्जना सुनी, तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि एक बड़ा सा लॉयन जो है कि गुफा के तरफ आ रहा है और बहुत गरज रहा था वो. अब जो स्लेव था वो बहुत डर भी गया और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था बचने का. उसने सोचा कि अब ये शेर तो उसे मार देगा. बट द लॉयन डिड नॉट किल एंड्रोक्लस. It limped over to a small rock near the entrance of the cave. It lay on the ground and roared in pain. Androclus sat still for a while. Then he walked over to where the lion lay. He reached down and gently picked up the lion's paw. The lion roared in pain, but it did not try to hurt the slave. Androclus saw that a long and sharp thorn was stuck in the lion's foot. He gently pulled out the thorn. So कहानी ऐसे है कि अब शेर जो है वो, उनको लगा कि वो उसे खा जाएगा, मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि शेर के पैर में एक कांटा चुभा हुआ था, राइट. उसकी दर्द से वो करहा रहा था. उसने ऐसा कुछ नहीं किया. उसने बाहरी गुफा के वहाँ पर वो बैठ गया और उसके पाँव में कांटा चुभा हुआ था, इसकी वजह से वो बहुत दर्द में था. तो धीरे से एंड उसने जब देखा कि ये बहुत बड़ा कांटा है उसके पैर में,
तो उसने उस कांटे को खींच दिया बाहर. Right? The lion roared loudly and stood up as the thorn was being pulled. It stood leaning over the slave. The slave closed his eyes, he was expecting the lion to eat him. But instead, the lion simply licked his face like a puppy dog. So, उसने जब कांटा निकाला ना, तो वो एकदम से खड़ा हुआ ऐसे करके, और उसको ऐसा लगा कि जैसे शेर उसको खा जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शेर ने उसे खाया नहीं. शेर ने उसके बदले क्या किया, एक जैसे पपी होता है ना छोटा सा, वो मुंह पे लिक करता है ना, आपका फेस को लिक करता है, इसी तरह उस शेर ने भी उसके फेस को लिक करना शुरू किया. Androclus brought the lion water to drink and watched over it until it was better. अब उसके लिए पानी लाया और उसका ध्यान रखा जब तक वो ठीक नहीं हो गया. This was a start of a great friendship. अब ये थी उनकी एक ग्रेट फ्रेंडशिप की बिगिनिंग, कि दोनों एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे. Thereafter, the lion and the slave walked in the woods together, hunting and playing like two friends. But one day, as Androclus walked into the woods alone, he met some soldiers. They recognized that he was a runaway slave and took him back to the city. During those days in Rome, the punishment for slaves who used to run away was severe. अब उन दोनों की दोस्ती तो हो गई थी, तो एक दिन क्या किया एंड्रोक्लस ने, वो जो लकड़ियों का वो झाड़ियाँ वगैरह उसमें अकेला चला गया. वहाँ उसे सोल्जर्स मिले. अब सोल्जर्स ने उसे पहचान लिया, ये तो भागा हुआ हमारा स्लेव है. अब वहाँ रोम में क्या हुआ करता था पहले, जो ऐसे स्लेव भाग जाते थे उनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट होती थी, उनको बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी. The slave was taken and locked up in a jail cell at the arena, and arena was a place where thousands of people came to watch races and sports. It was also a place where people came to see terrible punishments being given to criminals like runaway slaves. ऐसी जगह भी थी जहाँ पर लोग देखने आते थे कि उनको जो टेरिबल पनिशमेंट मिल रही है ना क्रिमिनल्स को, या जो भागे हुए स्लेव्स थे, लोग उन्हें भी देखने आते थे. A lion was caught and locked up without food. The authorities were going to feed the slave to the hungry lion. Androclus was let out of his cell. He looked around and saw crowds, of people laughing at him and waiting for the hungry lion to be released. अब वही lion को जो उसके साथ था, फ्रेंड था उसका, उसको भी उसको अथॉरिटीज़ जो भी थी उन्होंने उसको ऐसे छोड़ दिया कि वो उसको खा जाए, वो शेर स्लेव को. वो बाहर आता है और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, जैसे वो वेट कर रहे होते हैं कि लॉयन उसे खा जाएगा. अब लॉयन rushed at him and jumped into the air. It landed at the feet of Androclus and rushed up to put its face next to his. It then stuck out its tongue to give the slave's face a big lick. जैसे उसने पहले किया था ना, लिकिंग कर रहा था, अभी भी उसने ऐसे ही किया जैसा अनएक्सपेक्टेड सबके लिए था. The lion was his friend. It was the same lion whom he had helped earlier, क्योंकि उसको भी पकड़ लिया गया था, उस lion को भी. Androclus put his arms around the lion's neck and gave it a big hug. Androclus ने बड़ी सी हग दी उसे अपनी चारों तरफ बाहों में भर के, और then he rubbed its head, and when it turned over, he scratched its belly. उसको पेट पे प्यार किया, उसको बहुत सर पे सहलाया. People were astonished. वो बड़े हैरान से थे कि ये उल्टा कैसे हो गया, मतलब उसने खाने की बजाय उसको प्यार कर रहा है. वो तो बहुत सरप्राइज थे. Androclus was given his freedom. The lion was also let go. It became the pet of Androclus, and the two lived together as friends for many years. अब दोनों को छोड़ दिया गया और दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे के फ्रेंड्स बनकर रहे. तो बच्चों, दोस्ती इसी का नाम है, जो एक दूसरे, उसने उसकी मदद की और ऐसी मदद की जो उससे बहुत दर्द में था, वो है ना, और अपने दोस्त को वो कैसे खा सकता था. तो अगर दोस्ती करो तो उसको निभाओ बच्चों, क्योंकि दोस्त आसानी से नहीं मिलते हैं. राइट? ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन सम वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स. Slave owned worker, limping, walking difficulty, and runaway, escaped person, jail cell, prison room, authorities, officials, rulers,
cruel, unkind, harsh, thorn, sharp plant, spike, severe, harsh, extreme, arena, sports venue, astonished, greatly surprised. Tricky words: treated, starve, escape, roaring, leaning, crawled, terrible, scratched, crowd, freedom. So now we have स्पीकिंग सेशन. बहुत खुश होते हैं आप स्पीकिंग सेशन में, है ना. सो देखिए पिक्चर की तरफ और इन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑरली कीजिए. लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑरली. देन यू हैव लिसनिंग सेशन ऑल्सो बच्चों. फिर से कहानी सुनने को मिलेगी. आपकी टीचर आपको कहानी सुनाएंगी. योर टीचर विल रीड आउट अ शॉर्ट स्टोरी इन द क्लास. लिसन द स्टोरी केयरफुली एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. Then writing session as usual. Comprehension होगी आपके पास. Use the pencil and fill the correct circle given alongside MCQs. Fill in the blanks. Chapter की help लीजिए. Go and check the sentence in the chapter and fill in the blank. C part. State true or false for the following statements. Chapter based statements दी गई हैं. आप statement check कीजिए. अगर आपके chapter से ली गई है और correct है तो T, otherwise F. डी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखिए. बेस्ड ऑन योर चैप्टर है. इफ़ यू डोंट फाइंड द आंसर आप चैप्टर की हेल्प दोबारा से ले सकते हैं. वर्ड पुल. ए पार्ट. टिक द करेक्ट यंग वंस फॉर द गिवन एनिमल्स. एंड यू हैव इन बी पार्ट सेग्रीगेट द वेरियस फीलिंग्स मेंशन्ड बिलो अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉलम्स. सो आपको वन साइड पॉजिटिव देना है, जो भी फीलिंग्स आपको पॉजिटिव लगती हैं. नेगेटिव साइड में नेगेटिव फीलिंग्स मेंशन करनी है. ग्रामर इन एक्शन. तो आज का ग्रामर टॉपिक क्या है बच्चों इस चैप्टर का? एडवर्ब. एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स. कैसे, कब और कहाँ कोई एक्शन हो रहा है, ये एडवर्ब्स कहलाती हैं. दे ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक. How she sings beautifully. So adverb beautifully tells how she sings. कैसे गाती हैं वो, ये बताता है beautifully adverb. So now we have when. He always reads in the evening. The adverb always tells when he reads. Where the cat is sitting there. The adverb there tell us where the cat is sitting. How often. They visit the museum frequently. The adverb frequently tell us how often they visit the museum. सो नाउ इन ए पार्ट प्रैक्टिस करनी है आपको इन्हीं एडवर्ब्स की. सो ए पार्ट में आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स इन ब्रैकेट्स. एंड इन बी पार्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको जो मिस्टेक्स दी गई हैं उनको करेक्ट करना है. थिंकिंग कॉर्नर है आपके पास. यू आर विटनेस समवन टीजिंग अ स्ट्रे कैट इन द पार्क. व्हाट शुड यू डू. आप पार्क में गए हैं, वहाँ पे एक स्ट्रे कैट को तंग किया जा रहा है. आप क्या करेंगे? कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी आपका एक्शन होगा, टिक कीजिए उसको. क्रिएटिव साइकिल. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन इमेजिनरी एनिमल फ्रेंड. थिंक अबाउट द एनिमल्स नेम, फीचर्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू एंजॉय डूइंग टुगेदर. आप सोचिए कि ऐसा एक आपका एनिमल फ्रेंड है. आप क्या एक्टिविटी करेंगे उनके एनिमल्स के जो नेम है, फीचर्स हैं, पर्सनालिटी है, सबको मेंशन करते हुए और एक्टिविटीज़ मेंशन करते हुए जो कि आपको उनके साथ करना इंजॉयमेंट होगा आपके लिए, वो सब करते हुए आप इसे पिक्चर ड्रॉ करें और हैव फन.